Thank you very much, Rohit. Thank you, Gulzar Saab, Javed Saab, Namita. The calendar's on sale and we'll have a calendar every year here on. Hello everybody. This calendar was wrapped in a dupatta, so it seems it is going to be the year of women. Jarvis. I'm sure there needs to be a punishment for authors who keep everybody waiting, but I can't think of one. I'll think of it in a bit. But meanwhile, ladies and gentlemen, please meet our authors for today. This session is called Kahani Kisko Kete Hai, script, story, screenplay. Please accept my apologies for my Hindi pronunciation. This session is proudly presented by NewsX. And please join me in a very warm welcome to Javed Akhtar, Prasun Joshi, Gulzar, Vishal Bardwaj, and Samit Basu. Good morning. It's just that kind of normal Monday morning where you find yourself suddenly on stage with the four most wonderful living storytellers in Hindi cinema. Five possibly. So you know, we have 1 hour. I'm sure you all know exactly who the gentlemen here on stage with me are. And I don't need to waste your time and mine introducing them to you. But let's show this recognition with a starting warm round of applause for our panelists. Right. So the first thing I did when I found that I was going to be conducting this session was create this long list of questions that I would want to ask all of my panelists, you know, for the sessions of time extending for above an hour each. But then I was watching the last session in the front lawns yesterday, and I discovered that every time the moderator was talking, I wanted to run on stage and put a bucket on top of her head. Not out of a sense of dislike or disrespect, but simply because I had come to see these people talk. So I see myself as more of a sort of freelance jump cutter. We're here to see what these four gentlemen have to say about the art of story. And I'd like to start off with Gulzar Saab, which is that I was recently watching this wonderful PBS documentary on the entire career of Woody Allen. And the loveliest part for me was learning that he'd spent all 4 decades of storytelling working on the same typewriter. And he took the audience through his process of physically constructing a story and how he transformed that into a larger piece.
So I'd just like you to share with us what your physical process of work is when you're telling a full-length story. The physical aspect of working out a story, I don't know, but the mental process of working out a story is different than the physical side of physical part of how physical is only once you have worked out a story mentally, and its intricacies which keep on wriggling your thoughts or which keep on you feel strangled at times, and then you want to get free out of it and remove it from your neck. But the physical part, I think, is very simple. Once that is done, then you write it down. You just jot it down. I do the entire process with my handwriting. I know people have started writing on computer now, and it's very easy, and people carry it with it. But my thought process starts with my pen. And I can't help it. It's my habit, or the way I have trained myself, or the way I have been doing it. Unless I hold the pen and put it on the paper, it doesn't come down. This thought process doesn't work it out. No, but you know, this session is called Story, Script, Screenplay. So I just wanted to know, do you make a distinction between the three, or do you see it as one whole story that you just build at one go? The theme comes out as a one impact which enwraps a story. It's the theme. What you want to say, I think, is somewhere there when the moment you catch a situation, an unusual situation, which tells you to describe it, and then work out with that thought of the theme which has struck you, then you start building it around with its characters. And it's like making a spaces or catching the spaces. Like an architect, he does it that it's an open space. I mean, you don't know how to conceive a house in it, but you do find out what is the boundary and what is the area. Then mark that, and which side is the sunrise, which was the front side of the house. And then you start, after enwrapping that area, then you start bisecting it to your vision, to your requirement, and its environments, which side you want to look. And then, of course, the जिसे मंजिलें कहते हैं, the stories, how many stories, that starts appearing in your mind. So I think it is from that broad, open space that you have to specify the thought, the theme, and then build a boundary around it. Mr. Bharadwaj, Mr. Joshi, and Javed Saab, the panel is open to all four of you at all times. And I think the best parts of this panel will come from the four of you just jumping in on every idea and sharing your thoughts. So, are your processes fundamentally different from what Gulzar Saab just described? Javed Saab? Well, at the very outset, I would like to thank you for giving us this information that Woody Allen has been typing his stories on the same typewriter since the last 40 years. It may not tell us anything about a good story, but it definitely tells us something about a good typewriter. As far as the story is concerned, how to, of course, story and screenplay and dialogue are three different, particularly in India, they are three different endeavors. And what had happened in US after the Second World War, that a lot of filmmakers and writers from Europe migrated to US. Now they knew cinema, they knew script, but they did not know enough English. So they could not write the spoken line, but they could structure a narrative. Now the difference between a story and a screenplay, you know, when I had gone to film industry, I was 19 years old and I had no idea what is a screenplay. And I used to think screenplay is editing because, you know, in a magazine, the editor decides this article will come in the beginning and that story will be in the end and so on. So I thought the serialization of the scenes is editing, but it's not true. Editing is another thing. Story in cinema is what, and a screenplay is how. What do you want to say, and how do you want to say? How do you, suppose I say that in a story, when you are writing a story, a novel or short story,
the writer is always present and he can give his or her remark. There was a very poor man who was hungry since 2 days. Now this is the information I have shared with my reader, but when it is depicted on the screen, how do you do that? Shall I give a subtitle? So now these two things have to be transferred into a scene in a audio visual. I'll have to show that the man is wearing torn clothes. He is in a small hutment or in a small room of a slum. He comes out, and as he is walking on the street, obviously I can't give an X-ray of his stomach. So a child is going away and he throws half-eaten apple on the pavement, and this man looks at it. And then he moves ahead, and there is a restaurant where people are eating. He can see through the glass and looks at them. I will realize that this man is hungry. What was written in one line has to be translated in audio and visual. And then words also, obviously. That is a screenplay. Now, how a story is written, how a screenplay is developed is a tricky question, because in my limited experience, every story finds its own way of growing. It is like asking how a river starts from a mountain and reaches the ocean. Every river makes its own path. It depends on the territory, it depends on the terrain, depends on the topography of the place, and so on, and the direction of the ocean. But one thing is for sure, the river cannot reach the ocean if there is not enough water and if there is not enough thrust. But every river finds its own way. Story can start with an incident. Story can start with a character. You get fascinated by a character and you follow the character and the incident follows. You get fascinated by an incident and look into the incident. You find some characters and this incident generates another incident and then another and then another. But I think on one level or another, a story needs coherence. Any story should be able to be narrated in 3 lines. The first line should tell who it is about. The second line, what happened to him, her, or them. And the third, then, what was the result of it? Anything which qualifies on these 3 points is a story. Thank you. Well, I completely agree with Javed Saab that story has to have beginning, middle, end, and there has to be a tension. But I think that story is actually much broader. If you see, everything has a story in life. I think whether, to begin with, you have to have an idea for having a story. Ideology, political ideology has a story. All the religious leaders have a story. All the religions have a narrative. All the religious narrative converted them into religions. Jesus Christ has a narrative. Hazrat Muhammad has a narrative. There is great story in Hindu mythology. Moses has a story. Because of the story, you have a religion out there. Without the story, there is no religion. So, there have been great storytellers in various forms. And if you see, if the storyteller has great intention, it helps the society. And the storyteller has wrong intentions, you have Hitler in front of you. That's also a storyteller. He tells a story in a certain way which is poisonous, but he's an effective storyteller. That's why so many people buy into that story. So there is story all around us. I was brought up in the mountains in Almora, and once I was sitting in a small village in Italy. Here I hear a bird. I often tell this story, that the bird says cuckoo, 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 and I'm quite amazed because I have heard this bird. I used to believe this bird is only found in the Uttarakhand. Because that's what I was told. Because I was told there's a story behind this bird's existence. Now that's how human mind creates stories. The story was that
there was this girl who used to wait for her brother every time when Bhaiya Dooj happens. And the brother used to come, and brother's supposed to be hungry before the tika happens. And this day, she's waiting for the brother. Of course, those days they used to walk from one village to another village. And he's late. So she falls asleep. The brother comes and finds the sister falls asleep, looking beautiful, angelic, innocent. वो उसको कंबल उड़ा के places a kiss on her forehead and leaves. After some time, the sister gets up and she finds out that the brother came and he went back hungry. Now, food was very important those days. She felt very sad and she starts crying. And she cries, and she dies and she becomes this bird. A bird who always says, Bhebukko, Mesoti, Bhebukko, Mesoti. Now this is the story I've heard. The bird is also found in France and Italy, but they would have had their own narrative to it. So I think human mind creates narrative out of everything. And we have used storytelling to preserve knowledge, to pass on information, to motivate people, sometimes to demotivate people. But there is a huge, sort of relationship between human civilization and storytelling. Storytellers are the most powerful people in our society. And that is the reason when it gets converted into books, it's different. When it gets converted into cinema, it's different. And when it comes to books and cinema, there is huge difference between screenplay and book. A book it dives deeper into your psychology. I was reading Paul Schrader's comments about screenplay, and he said screenplay is like, my uncle has gone duck hunting, and how he tried the whole day and failed in the evening. That's the kind of depth you require in screenplay. I need to draw. It's more experiential. Cinema is more experiential. A book is more individualistic. You have a very individual relationship. Cinema is a collective consumption format. There's so many people sitting together and consuming something. If I nod at something which is uncomfortable for another person, I'm very uncomfortable doing that. But the book is a personal relationship, and I can say I agree with him. But in collective consumption, you might not agree. Now the question is, there are DVDs available now. That's why you have a very different kind of cinema which works at DVD level. When you're consuming it all alone by yourself, it's like reading a book. That's why you see a difference between the cinema which works in the theaters versus the cinema which works on the DVD. You have a very different kind of audience out there because it's a kind of one-on-one relationship. So there is a huge difference between books and screenplay. And I think David, who wrote the screenplay for Reader, I think, he had said it here only, that we probably can't compare, screenplay with books, and it might not get canonized as much as a book gets. Mr. Bharadwaj, before we start, I just want to add, as I should have at the beginning, that I've been hearing Hindi and Urdu coming out of the audience for a while. So all answers in whatever language the answer is best given in. I think that would be appreciated by everyone, right? Yeah. I also want to ask you specifically, I read, this might be completely false because the internet often lies, that you started directing films because you wanted a platform for your music to find its best expression on. I want you to, while we're discussing this subject, also just compare the experience of composing with music and composing with words as you also do. Yeah, that's true, because I became director to employ myself as music composer because I was out of work. I was not getting any work in the film industry. So that was a primary reason for me to become the director. पर स्टोरी की जहाँ तक बात है, वो जावेद साहब ने जो बोला, what and how, I think story एक सबका as a filmmaker, because since we are talking about story and screenplay and script, so I think, and I make films, so I'll keep it to the films only. I won't go into books. So in films, I think to start with the story, because you need a story to make a film. So for that story, there are many reasons you come that on which story you want to make a film. कोई कैरेक्टर हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई इंसिडेंट हो सकता है, कभी सिर्फ कोई लोकेशन का टेक्सचर हो सकता है. तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, पर
मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो रिजोल्यूशन ऑफ द स्टोरी कि लास्ट में कहानी क्या कह रही है, क्योंकि बहुत इजी है फर्स्ट लाइक जैसे जावेद साहब ने बोला कि 3 एक्ट स्ट्रक्चर में हम लोग काम करते हैं, बिगनिंग मिडिल एंड। किसी भी कहानी का चाहे उसका रिजोल्यूशन कुछ भी हो कि हम लोग इस दुपट्टे के अंदर से सांप निकलने वाला है, अगर ये रिजोल्यूशन है इसका, और हम उसके फर्स्ट 2 एक्ट्स में कुछ भी करके कि हम लोग आए और अगर ऑडियंस को मालूम है से सांप निकलने वाला है तो वो उसका रिजोल्यूशन हुआ। पर अगर वो रिजोल्यूशन में कुछ बात ही नहीं है और हमने ये पर्दा खोला और इसमें सांप नहीं निकला, तो वो दोनों एक्ट, फर्स्ट 2 एक्ट्स को इंटरेस्टिंग और बहुत ही एंगेजिंग बनाना बहुत इजी काम है। पर धीरे धीरे जब आप अपने पत्ते खोलने लगते हैं तो पता चलता है कि आपकी डेप्थ क्या है, आपकी लेयर्स क्या है, और फाइनली अगर रेजोल्यूशन में आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं आया। फॉर मी आई थिंक द रेजोल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड आफ्टर वर्किंग आउट द इंसिडेंट, द स्टोरीज एंड द कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग, I think for me the story flows back from the climax. I look at it, the story, that how it's flowing back from the climax. And as far as the 3 act structure is concerned, I think I read Lajo Sigori, and he said beautiful thing about the premise of the story, that you should be able to say a story in one line. Yeah, the premise should be said in one line, and you cut that sentence into 3 pieces and you get your 3 structures. If you take an example as Macbeth, on which I made Maqbool, what would be the Javed Saab premise of Macbeth in one line? Ruthless ambition. Ruthless ambition leads to its destruction. Guilt that can be the shadow of your ambition. That is the theme. या जावेद साहब ने मुझे एक बार मैकबेथ पे बहुत करेक्ट किया था, तो मैंने पूछा, मैंने जावेद साहब से पहले इजाजत ले लूं मैकबेथ के लिए, कि ruthless ambition leads to its destruction. Also, behind every great man stands a woman with a knife. Yeah, so you cut these into 3, or the Othello, that jealousy destroys itself and the objects of its love. So you cut this sentence into 3 and you get to 3 acts. So this is, and as you asked me about music, yes, of course, music really helps me in directing films, and I really see scenes as a music composition, the rhythm and the accents and everything. So music really, really helps me in writing my scripts. When I'm writing dialogues, I think music really helps, and Javed Saab and Gul Saab, they're both great dialogue writers, are sitting here, so I won't say anything more about that. Actually, what you just said about the 3 act structure, it led me to another question I wanted to ask. And I remember from last year's session, the 3 of you, there was much discussion which I found very relevant about the fact that the Hindi film has its own structure and its own rhythms. You know, and I remember that you were talking about how you didn't like it that nowadays people felt bad about not including songs separately as part of the narrative, but instead having... ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है. No, so I just wanted to ask, and you know, starting with Gulzar Saab and Javed Saab, because in many ways you two have defined the format of, you know, popular film storytelling for Hindi cinema over the last few decades now, and you know this. So, do you think that the Hindi film has its own organic structure which is not necessarily related to the Western format? As a matter of fact, at the cost of repeating myself, because this is something that I have said quite a few times, but I hope that most of the people were not there where I was saying this. Hindi film, typical mainstream Hindi cinema, has not invented the form of narrative. It has inherited it. Before 1933, this structure was there. This structure was present in Urdu Parsi theatre, which was the urban theatre of India. This structure was in Ram Leela, in Krishna Leela, in Nautanki. And taking their influence and learning a lot from Victorian theatre, India had developed a strange recipe that is known as Urdu Parsi theatre by the virtue of the fact that most of the theatre owners and actors were Parsis,
and most of the writers of those plays were Urdu writers. They had plays like Yehudi, which ultimately was made into a film by none other than Bimal Roy. They had plays about Roman characters and Egyptian characters and so on and so forth, and Indian characters too. But even if the hero was Marcus and heroine was Helen, who were Romans, they would sing "Sanya abhi tak nahi aaye." तो वो गाने भी थे उसमें, और उसमें पोइट्री में बात होती थी. मैं आप लोगों को उसका एक हिस्सा सुनाना चाहूंगा जो मुझे याद रह गया, पता नहीं क्यों, जब मैंने पढ़ा था. दिस प्ले वॉज रिटन बाय आगा हशर काश्मीरी, और उसमें जो बादशाह है वो कैद कर लिया गया है, एंड द विलन हु इज द रूथलेस जनरल हु हैज टेकन ओवर. सच थिंग्स हैपन, यू नो, इन द वर्ल्ड. एंड he is sitting on the throne and Basha is brought in the court, chained as a prisoner. तो ये उससे कहता, अब इनकी बातचीत क्या है जरा सुनिए. ये शहबाज ज़माना, आपने इस नाचीज को पहचाना? The king replies, पहचाना पहचाना शैतान को कौन नहीं जानता है, बल्कि हर एक पहचानता है. शक्ल सूरत देख ली, किब्रो देख ली, नाम पहले से सुना था, आज सूरत देख ली. He says, मगरूर, तू जंजीरों में जकड़ा है फिर भी अकड़ा है. सर से गुरूर मसनदो मखमल नहीं गया, रस्सी तमाम जल गई पर बल नहीं गया. बादशाह कहता है, इज्जत वाले मुसीबत से नहीं डरते हैं, तारे अक्सर रात के एवज दिन में निकलते हैं. भरी बरसात में जिन नदी नालों में रवानी है, उन्हें गर्मी में देखो, न मौजें हैं न पानी है. मगर दरिया को इस ताबिश का हरगिज गम नहीं होता, और लगा दो आग तब भी पानी कम नहीं होता. कैद में भी शेर की शेराना खू जाती नहीं, और मिट्टी में मिलके भी इत्र की बू जाती नहीं. विलन कहता है, बदज़बां कम नहीं होती है हिमाकत तेरी, खैर मालूम हुआ आ गई शामत तेरी. अरे कोई है, ले जाओ इसे कैद रखो आज की रात, सुबह खून पी लूंगा इसका नाश्ते के साथ. क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह. जावेद साहब, इससे एक चीज मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो सारी राइटिंग है, ये ओरल ट्रेडिशन की राइटिंग है, और जिसमें आप देखिए रिदम और राइम हमेशा रखा जाता था, और उसकी क्योंकि एक जरूरत थी, डॉक्यूमेंटेशन संभव नहीं था, आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, लिखने शायद इजाद नहीं हुआ था, तब की परंपरा है, तब तो हो गया था जब ये हुआ है. लेकिन ये एक स्टाइल ऑफ राइटिंग जो ओरल ट्रेडिशन से हमारी निकल के आती थी, उसमें मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी कि ये कैसे याद रहेगा. और जावेद साहब को आज तक याद है, तो खैर इनकी तो याददाश्त कमाल है. उसके बावजूद भी लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जावेद साहब. But this represents the oral tradition of our country, and a lot of writing in the beginning was like that. That's why songs were very important, and a lot of messages were given through songs. And songs also were part of narrative, because you could, build a lot of information and pass it on to people to remember it for ages, and that kept on happening. Later on, when books come and writing comes, that gives you a sense of security that what I am writing and saying, whichever form, that's why free verse and all those things come later. When you are much more assured that it has been documented, it has been written, it will not get lost. But when you have only memory to rely on, I think this kind of rhythm and cadence and rhyme played a very important role. Sorry for interrupting again. अब देखिए, ये जो स्ट्रक्चर था, ये हिंदी सिनेमा ने एज इट इज ले लिया. अब उसमें मतलब फर्नीचर और कॉस्ट्यूम चेंजेस होते रहे, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये 3,500 साल पुराना है. ये उससे भी पहले मिर्च कटिका, ये सब जो आप संस्कृत प्लेस देखेंगे 3,000 3,500, उनमें भी यही स्ट्रक्चर है. तो देर इज सम मैजिक इन दिस स्ट्रक्चर. अब वो क्या है, क्या करिश्मा है उसका, बड़ा मुश्किल है उसे डिफाइन करना. But it works. I mean, Indian cinema is the only cinema in the world that has been able to stand in front of the onslaught of Hollywood in the world.
हिंदुस्तानी सिनेमा सिर्फ हिंदुस्तान में ही पॉपुलर नहीं है, ये पूरे फार ईस्ट में, मिडिल ईस्ट में, गल्फ में, अब लैटिन अमेरिका में इट इज मेकिंग इनरोड्स। मगर मुझे इस बात का दुख हो रहा, थोड़ा मुझे डर लगता है कि अगर हम अपने इस बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करके, हमारा स्ट्रक्चर जो हिंदी सिनेमा का स्टोरी का है या स्ट्रक्चर जो है नैरेटिव का, इट इज नियरर टू अ नॉवल, while if you take an average continental film, it is nearer to a short story. अब हम धीरे धीरे, because younger generation is influenced, exposed to that kind of cinema, that literature, much more than our indigenous cinema or indigenous literature, वो धीरे धीरे इस स्ट्रक्चर को चेंज कर रही है. They are getting embarrassed about songs also, so they have taken a back seat. वो अभी बैकग्राउंड में ज्यादा होने लगे हैं. जो कहानियां हैं वो थोड़ी थिन होती जा रही. मैं अच्छी बुरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इमल्शन की बात है, थोड़ा थिन है. जो कि हमारे यहाँ तो सागास, वी हैव बीन ब्रॉट अप एज अ नेशन ऑन सागास एंड एपिक्स, तो वो हमारा मिजाज है. जब तक 2-3 जनरेशन की कहानी ना हो, हमको मजा नहीं आता. ये सच्ची बात है. अब वो एक सुबह एक स्टेशन पे एक लड़का और लड़की मिले, ट्रेन का इंतजार दोनों कर रहे थे, शाम तक बैठे रहे, शाम को ट्रेन इनकी भी आ गई, उनकी आ गई, दोनों चले गए. वो हमें नहीं सेटिस्फैक्शन होता. तो जावेद साहब, इसमें एक चीज और कि हमारे यहाँ ये कई लोग सवाल करते हैं, बाहर से लोग आते हैं तो कहते हैं हिंदुस्तानी सिनेमा पुराना, खासकर अभी तो बहुत चेंज हुआ है. जैसे विशाल जी ने जो सिनेमा किया वो बिल्कुल डिफरेंट है. लेकिन जो हमारा सिनेमा क्लासिकली होता था उसमें वो कहते थे यार कहानी तो वो ऐसा लगता है कि पता है लोगों को, एक्चुअली पता होती है. इट वॉज ही नोज. जावेद साहब की फिल्म है शोले, सबको पता है कि गब्बर सिंह के साथ कुछ तो होगा भाई, ऐसा तो नहीं है इसको छोड़ा जाएगा. लेकिन कैसे होगा? I think the Indian cinema was about how, not about what. It was not about a boxing match. It was about WWF. आपको सब कुछ पता है फिर भी मजा आ रहा है. So that is the reason every dialogue has the punches and the songs were very important. I think those things, the layers were very important. You knew, people say that epics have been represented again and again. तो वो एक है, उसका एक cyclical था हिंदुस्तानी सिनेमा में, उसका एक अपना कैरेक्टर था जो कि लीनियर सिनेमा विच इज वेस्टर्न सिनेमा से काफी मुख्तलिफ था. जी मुझे तो कुछ भी नहीं कहना, मैं तो सुनना है. मैं तो बल्कि कहानी सीख रहा हूं कि कैसे होती है. और ये सही है कि जो जल साहब ने कहा कि वो ट्रेडिशन है, वो ठीक है, सही है, बिल्कुल हम उसी ट्रेडिशन से उतरे. और जहां बाहर शॉर्ट स्टोरीज हैं, वहां उनके यहाँ इस तरह के एपिक थे ही नहीं, तो क्या करेंगे? वो नॉवल नहीं लिखते, वो शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं. और शॉर्ट स्टोरी अपनी तरह की एक फॉर्म है, हर शख्स अपनी तरह से कहानी सुनाता है. हमारे यहाँ भी मतलब उन एपिक्स के होते हुए भी कि नानी ने जब कहानी सुनाई, कोई भी कहानी सुनी, कछुए की सुनी, कछुए और खरगोश की कहानी भी, तो वो कछुआ हाथ से बना के नानी बताती है कि किस तरह से इस तरह से जंप करके चलता है और इतना तेज चलता है. तुमने खरगोश देखा, कान खड़े रहते हैं. दादा के पास गए तो दादा ने कहानी शुरू की, बेटा जब तालाब सूख गया और कछुआ वहां से बाहर निकला, तो उन्होंने वहां से शुरू की. तो पर्सपेक्टिव हर शख्स का कहानी सुनाने का अपनी तरह का अंदाज है. मैं तो नानी और दादा की बात कर रहा था. मैं तो अब नाना और दादी यहाँ एक बैठे हैं, उनसे सुन रहा हूँ कि कैसे कहानी बनती है और उसी का स्क्रीन प्ले बनाया जाता है, वो अपनी तरह से सुनाते हैं. अब जिसका मैं, अगर मुझसे कहिए तो जिस तरह मेरी फिल्में अगर आपने देखी हो या भूल गए हो तो भी मतलब मुझे शॉर्ट स्टोरी से कहानी शुरू करते हुए अच्छा लगता है, बजाय एक बहुत लंबे चौड़े कई पीढ़ियों के प्लॉट के. हालांकि वो सुनना अच्छा लगता था और ये बताना अच्छा लगता था. ये दो अंदाज फर्क थे. सुनने में मुझे वो अच्छा लगता था, बताने में शॉर्ट स्टोरी की शक्ल, छोटी सी एक कहानी उसके अंदर, लेकिन उसकी लेंथ या उसके अंदर, जैसे आपने कहा ना कि वो दरिया में पानी इतना होना चाहिए कि वो समंदर तक पहुंचे. और ऐसे सफर में दरिया की मदद करती हैं ट्रिब्यूटरीज, जो इधर उधर से आके मिल जाती हैं और वो दरिया में पानी चलता रहता है. बहरहाल, लेकिन मैं वो फ्लैशबैक्स जो मेरी कहानियों में आते हैं वो उनकी डिटेल्स बताते हैं कि वो दोनों जो प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए थे वो कैसे भागी लड़की घर से. वो एक अपने आप में कहानी है. और ये लड़का जो घर से निकाल दिया गया तो भागा, तो दो कहानी.
उन कैरेक्टर के, उन दोनों कहानियां, उनके पीछे भी तो कहानियां है ना। जो तो जब ट्रेन आएगी, ट्रेन आने से पहले ये महसूस हो रहा था कि ये साथ, अब तो इनकी मोहब्बत हो गई, अब तो ये जा रहे हैं, अब तो एक साथ जाएंगे, अब तो ये साथ जाएंगे। शायद आज के हिसाब से उन्हें मालूम हो गया कि नहीं, देखो ये तो फक्कड़ है, इसके पास तो कोई नौकरी भी नहीं, काम भी नहीं, और आज की लड़की ये समझती है नौकरी तो फाइनली मुझे ढूंढनी पड़ेगी, और पड़े तो इसको खिलाऊंगी। तो हुआ ये कि जब 2 ट्रेन आई, वो उसमें चले गए, ये उसमें चले गए, तो एक क्लाइमेक्स बना। अब आपने देखा कहानियां कैसे बनती हैं, ये आपकी आंखों के सामने हुआ है, आप लोग चश्मदीद गवाह हैं। मुझे एक बात याद आई गुलजार साहब, ये बहुत सही बात गुलजार साहब ने कही कि वक्त के साथ वही कहानी जो दादा ने सुनाई, तो दूसरी तरह इन्होंने एक बड़ी मशहूर कहानी है, सबने सुनी होगी, कि वो एक कछुआ और एक खरगोश में रेस हुई, और खरगोश भागता भागता गया, उसने कहा मैं तो खरगोश हूं, मैं तो बहुत तेज भागता हूं, तो एक पेड़ के नीचे सो गया, और कछुआ धीरे धीरे चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता रहा, और पहुंच गया। ये कहानी आप सबने सुनी है ना। तो अब एक टीचर थे, उन्होंने कहा भैया मोरालिटी चेंज हो रही है, दुनिया बदल गई है, इस कहानी में थोड़ा कुछ चेंज करना पड़ेगा। ये तो आप प्रीच कर रहे हैं लोगों को स्लो चलने को, और जमाना अब हो चुका है फास्ट। तो अब ये कछुए की चाल जो है वो कभी वर्चू रही होगी, अब नहीं है, तो इस कहानी को थोड़ा चेंज किया जाए। तो उन्होंने एक नया वर्जन कहानी का बताया, पुरानी कहानी का, कि वो कछुए और उसमें रेस हुई, और वो खरगोश कहीं रच हो गया, लेकिन कछुआ चलता रहा, और हम कछुए के साथ रहे, हम भूल गए खरगोश को। और कछुआ चलते 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 जब विंडपोस्ट पे पहुंचा, तो वहां खरगोश बैठा हुआ था। तो कछुए ने कहा कि तुम यहां कब पहुंचे? तो उस खरगोश ने कहा कि आप गलत समझ रहे हैं, मैं वो नहीं हूं जिससे आपकी रेस हुई थी, वो मेरे दादा थे। मरते वक्त उन्होंने कहा था कि जब आप पहुंचे तो मैं बता दूं कि आप हार गए। ये कहानी बनी। तो वक्त के साथ तो ये तब्दीली आनी थी। बहुत खूबसूरत। देखिए कहानियां भी, ये जो फोकलोर्स हैं, ये हकीकत है, ये मजाक की बात नहीं। इवन जो हमारे एपिक्स हैं वो भी वक्त के साथ चेंज हुए और उनके वर्जन बने हैं। हमारे बड़े बड़े एपिक्स के अगर आप ढूंढेंगे तो हिस्ट्री में बहुत वर्जन मिलेंगे, जिनमें उनके एंड चेंज हो गए हैं, रिलेशनशिप चेंज हो गई हैं, सीन चेंज हो। अब इसकी डिटेल में जाने का तो वक्त नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली हीरो कौन है? कहानी होती है, कहानी का कोई हीरो होता है। तो हीरो जो होता है वो उस समय की जो मोरालिटी है और उस समय के जो एस्पिरेशन है, उसका पर्सोनिफिकेशन होता है हीरो। जब एस्पिरेशन चेंज होते हैं, मोरालिटी चेंज होती है, तो हीरो इमेज भी चेंज हो जाती है। आप सोचिए कि इस मुल्क में एक वक्त था कि जब एक ऐसा आदमी एक बहुत बड़ा हीरो था और यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लड़के उसकी नकल करते थे। जो आदमी शराब पीते पीते अपनी महबूबा की याद में मर गया, देवदास, वो आज हीरो नहीं हो सकता। मोरालिटी चेंज हो चुकी है, एस्पिरेशन चेंज हो चुके हैं। तो अलग अलग वक्तों में अलग अलग हीरो होते हैं और अलग अलग कहानियां उनके हिसाब से अपने को एडजस्ट करती हैं। इसलिए कि कहानियां कैरेक्टर से बढ़ के तो नहीं होती, कैरेक्टर को ही दिखाने के लिए और मिलाने के लिए कहानी बनाई जाती है ना। वैसे यही देवदास का ऐसे ही, जस्ट कोई खास बात नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन ये देवदास का आपने ठीक बताया कि ये वक्त बदल गया है, तो लेकिन उसके बावजूद तो एक इतनी सी बात है कि वो कहते हैं कि हर इलाके की कहानी अलग है। और संजीव कुमार बहुत अच्छा प्ले करके बताया करते थे कि पंजाब में उसने कहा कि वो यार पारो तो टुर गई, कोई कहता छाड़ना दूजी लग जाएगी, है ना। ये शायद ये बदल गया। वो गुजराती का बताया करते कि वो कहते थे देवदास, हाँ बोल भाई क्या चाहिए, तो कहते वो बिजनेसमैन है। लेकिन कहीं जाके वो मोहब्बत का जो इख्तिताम है ना, वो जो मोहब्बत का अंजाम है वो खूबसूरत लगता है। बाकी देवदास कोई भी हो, पारू कोई भी हो, वो मोहब्बत खूबसूरत लगती है, इसलिए आज भी फैसिलिटी। हाँ, मगर अब भी मरने को नहीं तैयार लोग।
और सच है। हाँ नहीं, काम पड़े हुए हैं भाई ना, ये नहीं बहुत सारे होगा। करने हैं, बहुत से काम रखे हैं जो करने हैं, है ना। मैं एक सिर्फ ये है कि वो क्लाइमैक्स आता है ना कहानी का, वो क्लाइमैक्स आना बड़ा एक जरूरी है। एक मिनट बात बताएं। हाँ जी। ये सब सुनाना बड़ा जरूरी है कि जो इन्होंने कहा ना, अलग अलग इलाकों की अलग अलग कहानियां होती है, अलग अलग किस्से होते हैं, अलग अलग फोकलोर होते हैं। इसमें मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा याद आया। लखनऊ के कुछ कव्वाल थे, उन्होंने तय किया कि भाई देखो यूपी में तो पैसा वैसा इतना है नहीं, पंजाब चलते हैं, और पंजाब में लोगों के पास बड़ा पैसा है जी, वहां कव्वाली गाएंगे और लाखों करोड़ों कमाएंगे। तो उन्होंने कहा अपने पड़ोसियों से, हम तो 1 साल के लिए पंजाब जा रहे हैं और करोड़पति होके वापस आएंगे। उनका जाओ भाई अब क्या करें। तो पहुंचे, जब वो पहुंचे तो पंजाब में एक पिंड में पहुंचे, वहां उनका बड़ा रिसेप्शन हुआ। अरे भाई लखनऊ के कव्वाल आए, लखनऊ के कव्वाल आए, इनकी कव्वाली रखो आज। तो शाम को प्रोग्राम उनका हुआ, वो बैठे अपना डाइस पे, हारमोनियम खोला, तो अब वो सुनाइए जी हीर रांझा। तो कल अब लखनऊ के बेचारे, वो जी हीर रांझा क्या कौन है? अरे कमाल है, वो हीर थी, वो रात को वो सरसों के खेत में अंधेरे में भाग के गई थी रांझा से मिलने, और वो भाग गई थी वहां उसे। हमें तो नहीं पता, नहीं जी फिर नहीं, हमें नहीं सुनना। अगले पिंड पहुंचे, अरे भाई लखनऊ के कव्वाल है, लखनऊ के कव्वाल है। फिर उनका हो गया, फिर उन्होंने हारमोनियम खोला, भाई वो सुनाइए मिर्जा साहिबान। मिर्जा साहिबान कमाल है, अरे वो भाग गई थी, उसके साथ भाई पीछे लगे हुए थे, मगर वो उसके साथ एलोप कर गई थी। जो वो तो हमें नहीं मालूम। फिर इसी तरह सोनी महिवाल, सोनी महिवाल, अरे आपको नहीं मालूम, वो रात को कच्चा घड़ा लेके उसने चनाब अंधेरे में रात को भाग के गई थी मिलने कच्चे घड़े। नहीं साहब वो तो नहीं मालूम। तो जाओ, अल्टीमेटली सारे फोकलोर इसी तरह होते रहे, वापस आ गए। तो लखनऊ वाले ने पूछा, भाई तुम तो 1 साल के लिए गए थे, 15 दिन में वापस आ गए, क्या हुआ, किसी ने कव्वाली नहीं सुनी? तो उन्होंने कहा, अरे बेचारे वो लोग क्या कव्वाली सुनते हैं, असल में उनकी कुछ लड़कियां भाग गई हो, बड़े परेशान। वो लोग बेचारे बड़े परेशान है। हाँ, घर में 3 शादी के काबिल लड़कियां थी। अब जो कहानी है वो लड़की भाग जाती है, क्या किया जाए भाई, हमारे लखनऊ में ऐसी कहानियां नहीं है। मेरा ख्याल है सेशन का भी तकरीबन हर कहानी का एक क्लाइमेक्स तो बहुत जरूरी होता है, बगैर क्लाइमेक्स के तो बात ही नहीं बनती। अब वो मेरा ख्याल है कहानी के शुरू से ही ये दिमाग में बैठ जाता है कि ये कहानी जो हम बना रहे हैं इसका क्लाइमेक्स क्या होगा, उसका क्लाइमेक्स कैसे बनाया जाए, और उसके लिए वर्कआउट करना पड़ता है, और शुरू से कुछ बो देना पड़ता है, कुछ बीज देना पड़ता है, ताकि ये आखिर में जाके पकी हुई फसल की तरह और फिर क्लाइमेक्स लगे, चाहे वो फसल में आग लगे या लावा उबले या तो बढ़ता रहे। और कई बार ये है कि आप एंटी क्लाइमेक्स दे देते हैं तो वो अपने आप में क्लाइमेक्स होता है, लेकिन ये कि क्लाइमेक्स का होना बड़ा जरूरी है। और क्लाइमेक्स में एक चीज जरूरी होती है कि कोई चीज पोशीदा है, कोई चीज छुपी हुई है जो आपने बताई नहीं, और वो एक अचंभा हैरत में डाल दे आपको कि अरे, और मतलब लोग उंगली मुंह में डाल के देखें। हमारे इस सेशन का भी मुझे लगता है कि कहानी पे अगर बात है तो कोई क्लाइमेक्स होना चाहिए। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसका क्लाइमेक्स कोई पैदा करूं। मैं दोस्तों इस सेशन का एक क्लाइमेक्स पैदा करना चाहता हूं कि मेरे हाथ एक लावा आ गया है और इस दुपट्टे में छुपा के रखा था, और मैं ये लावा आप सब पर उड़ेल देना चाहता हूं। जावेद साहब की नई किताब मेरी नियत थी, मैंने छुपा के रख ली, ये कल तक मुझसे सब्र नहीं होता था, तो मैं कहा ये तो मैं आज ही क्लाइमेक्स देने वाला हूं। मैंने फिर इजाजत ले ली थी यहां से, तो मैं कहा भाई एक क्लाइमेक्स तो हमारे हाथ में है। अब कई बार कहानीकार के पास क्लाइमेक्स नहीं होता, मेरे पास ये क्लाइमेक्स था। मैं जावेद साहब, वी वांट यू टू से अ फ्यू वर्ड्स। कुछ तो कहिए। पहले तो मैं गुलजार साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस किताब को इज्जत बख्शी, बहुत बहुत शुक्रिया।
मेरी पहली किताब तरकश 1995 में रिलीज हुई थी, जिसको कितने साल हो गए? 17 साल हो गए। तो एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए, इसके 50% की तो मैं गारंटी देता हूँ, देर से तो आई है। अब वो दुरुस्त आई कि नहीं आई आप देखिएगा, लेकिन 50% मैंने काम कर दिया है। इसमें अलग अलग पोएम्स हैं, गज़लें हैं, बाकी उनके बारे में बताने का तो मतलब ये है कि उनमें कुछ अपने आप को नहीं बता पाएंगी तो मदद की जाए। मुझे ऐसी कोई शिकायत अपनी पोइट्री से नहीं है, तो उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब ये किताब पढ़िएगा। कुछ शेर तो सुनने चाहिए, वरना क्या किताब की इजरा हुई। कुछ तो सुनाए। और हालांकि उन्हें किताब की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो जबानी उन्हें बड़े याददाश्त आपने देखा आपने कि बादशाह किस तरह सामने लाया जाता है और किस तरह वो अपनी नज्म सुनाए। तो एक साहब छतरी खरीदने जा रहे थे, तो उनकी बीवी ने कहा, देखो ये दुकानदार बड़े बेईमान होते हैं, जितना कहें उसका तुम आधा ही करना। तो पूछा दुकानदार से कितने की है? उनका 16 रुपए की है। तो कह रहे नहीं मैं तो 8 में लूंगा। उसकी भी शायद नहीं बिक रही थी छतरी, बहुत बहस होते होते वो 8 पे तैयार हो गया। जैसे ही वो 8 पे तैयार हो गया, कहला मैं तो 4 में लूंगा। तो वो इरिटेट हो गया, तो कहने लगा कि ऐसा कीजिए कि आप तो मुफ्ती ले जाइए। तो कहने लगे 2 लूंगा। तो अब मैं भी आपको, अब आपने शायर बड़े खतरनाक लोग होते हैं, मैं आपको 2 पोएम सुनाऊंगा। हाँ, मगर उससे पहले जिसके सर ये सेहरा है उनको स्टेज पे बुलाना बहुत जरूरी है, जिनका नाम है अशोक जी। कमाल ये है कि ये किताब का फाइनल जो मैन्युस्क्रिप्ट था वो मैंने इनको 4 दिन पहले दिया, और आज वो किताब जयपुर में मौजूद है। तो मैं अशोक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 मिनट यहां आके अगर एक आध जुमला मेरी तारीफ में बोलना चाहें। नमस्कार। ये राजकमल प्रकाशन के लिए ये गौरव की बात है कि हम जावेद साहब के प्रकाशक हैं। तरकश का प्रकाशन भी हमने किया था और आज ये लावा भी आप सबके सामने है। गुलजार साहब की पुस्तकें भी राजकमल प्रकाशन से ही छपी हैं। आप देखेंगे पाएंगे कि शायरी और लेखन और आप सबकी पसंद का लेखन क्या है। किताबें यहाँ पर हैं, आप लोग देख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मुझे गुलजार साहब ने सही कहा, मुझे तो याद है, तो मैं ऐसे ही सुना देता हूँ। है इस किताब में वो एक नज्म है, ये खेल क्या है। इसमें मेटाफर तो चेस का है, लेकिन बात तो कुछ और है। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है, मगर मैं कब से सफेद खानों स्याह खानों में रखे काले सफेद मोहरों को देखता हूं। मैं सोचता हूं ये मोहरे क्या है। अगर मैं समझूं कि ये जो मोहरे हैं सिर्फ लकड़ी के हैं खिलौने, तो जीतना क्या है हारना क्या, न ये जरूरी न वो अहम है। अगर खुशी है न जीतने की न हारने का ही कोई गम है, तो खेल क्या है। मैं सोचता हूं जो खेलना है तो अपने दिल में यकीन कर लो, ये मोहरे सचमुच के बादशाह हो वजीर सचमुच के हैं प्यादे। मगर मैं ऐसा जो मान भी लूं तो सोचता हूं ये खेल कब है। ये जंग है जिसको जीतना है, ये जंग है जिसमें सब है जायज। कोई ये कहता है जैसे मुझसे ये जंग भी है ये खेल भी है। ये जंग है पर खिलाड़ियों की,
ये खेल है जंग की तरह का। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रहे कि जाए मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना आए। वजीर ही को है बस इजाजत कि जिस तरफ भी वो चाहे जाए। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है, प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस न जाने पाए। मैं सोचता हूं अगर यही है उसूल तो फिर उसूल क्या है, अगर यही है ये खेल तो फिर ये खेल क्या है। मैं इन सवालों से जाने कब से उलझ रहा हूं। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है। गुलजार साहब का हुक्म है, एक खास मैं उनके लिए सुनाता हूं। दूसरी वही आंसू। किसी का गम सुन के मेरी पलकों पे एक आंसू जो आ गया है, यह आंसू क्या है? यह आंसू क्या एक गवाह है मेरी दर्दमंदी का, मेरी इंसान दोस्ती का? यह आंसू क्या एक सबूत है मेरी जिंदगी में खुलूस की एक रोशनी का? यह आंसू क्या ये बता रहा है कि मेरे सीने में एक हसास दिल है जो कि किसी की दिलदोज़ दास्तां जो सुनी तो सुन के तड़प उठा है, पराए शोलों में जल रहा है, पिघल रहा है। मगर मैं फिर खुद से पूछता हूं, ये दास्तां तो अभी सुनी है, ये आंसू भी क्या अभी ढला है? ये आंसू क्या मैं समझूं पहले कहीं नहीं था? मुझे तो शक है कि ये कहीं था। ये मेरे दिल और मेरी पलकों के दरमियान एक जो फासला है, जहां ख्यालों के शहर बसते हैं और ख्वाबों की तुरबतें हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ ड्रीम्स। ये मेरे दिल और मेरी पलकों के दरमियान एक जो फासला है, जहां ख्यालों के शहर बसते हैं और ख्वाबों की तुरबतें हैं, जहां मोहब्बत के उजड़े बागों में तलखियों के बबूल हैं और कुछ नहीं है, जहां से आगे हैं उलझनों के घनेरे जंगल। ये आंसू शायद बहुत दिनों से वहीं छुपा था। जिन्होंने इसको जन्म दिया था वो रंज तो मसलहत के हाथों, by the hands of expediency, were killed. Those sorrows, the parents of this tear. जिन्होंने इसको जन्म दिया था वो रंज तो मसलहत के हाथों न जाने कब कत्ल हो चुके थे। तो करता फिर किस पे नाज आंसू, यतीम आंसू, यसीर आंसू, न रास्तों ही से बाखबर था न मोतबर था, तो चलते चलते ठिठक गया था, छिचक गया था। इधर से आज एक किसी के गम की कहानी का कारवां जो गुजरा, इधर से आज एक किसी के गम की कहानी का कारवां जो गुजरा, यतीम आंसू ने जैसे जाना कि इस कहानी की सरपरस्ती मिले तो मुमकिन है राह पाना। यतीम आंसू ने जैसे जाना कि इस कहानी की सरपरस्ती मिले तो मुमकिन है राह पाना, तो एक कहानी की उंगली थामे उसी के गम को रुमाल करता, उसी के बारे में झूठे सच्चे सवाल करता। ये मेरी पलकों तक आ गया है। I'm really sorry my voice is going to break this mood now, but I forgot to even ask questions because I was so busy listening. I'm afraid we have to wrap up now. So, it really isn't my call. I could do this all day, but... ये देखिए, मुशायरों में जो मामूली शायर होते हैं वो पहले पढ़ देते हैं, तो हो गया है। अभी यहाँ दो पोएट बैठे हुए हैं, इनको आप जाने मत दीजिएगा। देखिए, ये दिन जावेद साहब का है और जावेद साहब का इस्तकबाल हम इसी तरह से किया करते हैं। जब सीनियर हैं तो हाथ पकड़ के ऊपर ले आते हैं सीढ़ियों के, और जूनियर हैं तो पीछे पीछे चलते हैं। सही है? हाँ, तो ये दिन जावेद साहब का है, हम उन्हीं से सुनेंगे।
आप बताइए, अगर इजाजत देंगी तो एक नज्म और सुन लेंगे लोग, बाकी आप पर है। आप बताइए। एक नज्म, लोगों की ख्वाहिश, लोगों की आरज़ू। चलिए ठीक। अच्छा, 3.25 मिनट। अब ये मेरा देना है, कल तो कोई सुनेगा नहीं मुझे, तो आप लोग आज सुन लीजिए। कल में आई विल गोइंग टू बी डीप ट्रबल। अच्छा सुनिए। वक्त। I'm afraid I have more questions than answers. Most of my poems are a kind of a question. ये आंसू क्या है और ये खेल क्या है, अब ये है, ये वक्त क्या है। ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर कि जो मुसलसल गुजर रहा है। ये जब न गुजरा था तब कहां था, कहीं तो होगा। गुजर गया है तो अब कहां है, कहीं तो होगा। कहां से आया, किधर गया है, ये कब से कब तक का सिलसिला है। ये वक्त क्या है, ये वाकये, हादसे, तसादुम, हर एक गम और हर एक मसरत, हर एक अजियत, हर एक लज्जत, these incidents, accidents, conflicts, every sorrow, every joy, every pain, every pleasure. ये वाकये, हादसे, तसादुम, हर एक गम और हर एक मसरत, हर एक अजियत, हर एक लज्जत, हर एक तबस्सुम, हर एक आंसू, हर एक नगमा, हर एक खुशबू, वो जख्म का दर्द हो कि वो लम्स का हो जादू, खुद अपनी आवाज हो कि माहौल की सदाएं, ये जहन में बनती और बिगड़ती हुई फिजाएं, वो फिक्र में आए जलजले हों कि दिल की हलचल, तमाम एहसास, सारे जज्बे, all feelings, all emotions. ये जैसे पत्ते बहते पानी की सतह पर जैसे तैरते हैं, अभी यहां है, अभी वहां है और अब है उछल। दिखाई देता नहीं है लेकिन ये कुछ तो है जो कि बह रहा है। ये कैसा दरिया है, किन पहाड़ों से आ रहा है, ये किस समंदर को जा रहा है। ये वक्त क्या है। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समझ जा रहे हैं। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समझ जा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। तो क्या ये मुमकिन है सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हों, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हैं। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समझा रहे, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। तो क्या ये मुमकिन है सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हों, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हों। इस एक लम्हे में सारे लम्हे, तमाम सदियां छुपी हुई हो, न कोई आइंदा न गुज़िश्ता। जो हो चुका है वो हो रहा है, जो होने वाला है हो रहा है। मैं सोचता हूं कि क्या ये मुमकिन है सच ये हो कि सफर में हम हैं, गुजरते हम हैं, जिसे समझते हैं हम गुजरता है वो थमा है। गुजरता है या थमा हुआ है, इकाई है या बटा हुआ है मुंजमिद या पिघल रहा है, किसे खबर है, किसे पता है ये वक्त क्या है। Please join me in giving a big round of applause to Javed Akhtar, Prasoon Joshi, Gulzar, Vishal Bardwaj, and Samit Basu. This session was presented by NewsX. I'm sorry to have had to cut this session off. If you do want to come back tomorrow, however, Javed Akhtar will be appearing here at the Tata Steel front lawns at 11:15.